जूते से एक खूबसूरत लोकतंत्र को कुचलने की जो कोशिश करी, उसके वो बधाई के पात्र है। आज मुगेम्बो बहुत खुश होगा, उनके दरबार में उनको 100 नंबर मिले। आप लोग जानते हैं வணக்கம். முகமது இர்ஃபானை நேரடியாக ராகுல் காந்தி சந்தித்திருக்கிறார். மஹுவா மொய்த்ரா சந்தித்திருக்கிறார். பிரியங்கா காந்தி போன்ல பேசியிருக்கிறார். இந்த நபருக்கு கிடைத்த அந்த வரவேற்பை நீங்க பார்க்கணும். லல்லன் டாப் ஆபீஸ்ல, என்னுடைய மீடியா பார்ட்னர் டெல்லி ஆபீஸ்ல அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பு. ராஜ்தேவ் சர்தேசாய் தனிப்பட்ட முறையில் இவரை இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கிறார். அஜித் அஞ்சும் இவரை இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கிறார். எல்லாமே நேற்று நடந்தது. பிரதாப்கடி எம்பி அவர் இவருடன் நேற்று டின்னர் சாப்பிட்டிருக்கிறார். யார் இந்த நபர்? அப்படி என்ன சாதனை படைத்திருக்கிறார்? என்னுடைய நண்பர் அண்ட் மை ஜூனியர் கொலீக் ரஜத் பாண்டே, லல்லன் டாப்பின் ரிப்போர்ட்டர், ஒரு 15-20 நாட்களுக்கு முன்பு ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தை கவர் செய்யும் போது இந்த நபரை ஐடென்டிஃபை செய்திருக்கிறார். பெயர் முகமது இர்ஃபான். இன்னைக்கு நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் வைரலாக பேசப்படக்கூடிய இந்த நபருடைய கதையை லல்லன் டாப், த ரூஸ்டர் நியூஸ் நாங்கள் தான் எடுத்துக்காட்டினோம். தமிழ்நாட்டிற்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் அண்ட் ஹிந்தியில லல்லன் டாப் எடுத்துக்காட்டி. இந்த நபருடைய கதை எந்த அளவில் உரிக்கியதுன்னு நீங்க பார்க்க வேண்டும். இந்த வீடியோவின் தொடக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் போட்ட அந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள். எந்த அளவில் அந்த உருக்கம் இருந்தது. அடுத்தடுத்து இந்த நபர் பேசக்கூடிய திறன். பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகவில்லை. டெல்லியில் ஒரு ஸ்லம்ல வசிக்கக்கூடிய இந்த மாணவர்னா சோஷியல் மாணவர், படிக்காத பட்டதாரி, ஆனால் வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த நபர். அவர் பேசும்போது நீங்க கேட்டீர்கள்னா அப்படியே குள்ளரிக்கும். ஒரு ப்ரோமோ நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள். இதற்கு மேல் ராகுல் காந்தியோடைய வீடியோ மற்றும் லல்லன் டாப்ல என்ன நடந்தது ரெண்டையுமே நீங்க பார்க்க போறீர்கள். முதலில் லல்லன் டாப்ல அவருக்கு கிடைத்த அந்த வரவேற்பை நீங்க பாருங்க. இந்த நபர் ஒரு ஸ்லம்மிற்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கே ஒரு ரோல் மாடலாக மாறிவிட்டார். எப்படி? அதை நீங்க பார்க்கணும். இந்தியா டுடே குரூப்பை சார்ந்த நியூஸ் சேனல் தான் இந்த லல்லன். அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான். அந்த அலுவலகத்துல வரும்போது எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே எழுந்து நின்று அவருக்கு கைத்தட்டி பாராட்டிய அந்த காட்சி நீங்க பார்க்கணும். உள்ள போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன், உள்ள வரும்போது புரியல என்னடா நடக்குது அப்படின்னு. லெஃப்ட பாக்குற, அங்க கேட்டு அங்க நீங்க போனீங்கன்னா உள்ள ஒரு ஸ்கேனர் இருக்கும். எங்கள்கிட்ட ஒரு கார்டு இருக்கும், ப்ரெஸ் கார்டு இருக்கும். அந்த கார்டை வச்சாதான் அது ஓப்பன் ஆகும். பிகாஸ் ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் லல்லன் டாப், ஸோ ஐ நோ ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ அந்த கார்டை வச்சோடனே அது ஓப்பன் ஆகும். பியூட்டிஃபுல் ஒரு லாவிஷ் ஆஃபீஸ்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஒட்டுமொத்த இந்தியா டுடே குரூப்போடைய ஒரு போர்ஷன் லல்லன் டாப்க்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் அந்த முகத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும். அந்த அலுவலகத்துல போகும்போது ஒரு வார்த்தையை பேசுறாரு. செருப்பை கழட்டி வச்சிருங்க. இல்லை நீங்க வாங்க. அப்படியே உள்ள வந்த உடனே மை அதர் ஃப்ரெண்ட் குல்தீப் அப்படியே கட்டி பிடிச்சு அவர் ஒரு அறையில போய் உட்கார வைக்கிறார். ஐ வாண்ட் யூ டு see this expression, you know. First you see, அதுக்கப்புறம் நான் பேசுறேன். பாருங்க. मैं खोल देता हूँ मैं. आप जाइए पहले. रुक जाओ. जा इरफान मेरे से. चलो. चलो चलो आप. चप्पल उतारू सर? नहीं चप्पल नहीं. भाई ठंड लग रही है सर यहाँ पे, मुझे ठंड लग रही है सर, और आप लोगों ने
चलो मैं मुझे इस संसार से और कुछ नहीं चाहिए भाई இந்த பையனுடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அந்த பையன் சொல்றாப்புல, இர்ஃபான், முகமது இர்ஃபான், எங்க வீட்டில் இதெல்லாம் இல்லை சார், ரொம்ப குளிருது, ஏதாச்சும் போர்த்திக்கிறதா கொடுங்க. டப்புன்னு குல்தீப் ஹி கெட்ஸ் அப், எங்களுடைய இந்த ஜாக்கெட் போடுறோம்ல, ஹாஃப் ஜாக்கெட், த சேம் சிமிலர் ஜாக்கெட் குல்தீப் எடுத்து கொடுக்குறாரு. ஐயோ காப்பாத்திட்டீங்க என்ன, இது போதும், அப்படியே போட்டுக்கிறான். வெரி நேச்சுரல் பர்சன், வெரி வெரி நேச்சுரல் பர்சன். आ जाओ, या तो अंदर या बाहर हो जाओ जैसे भी। नहीं हो तो मुझे यहाँ ठंड मैं देता हूँ। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे यहाँ ठंड लग रही है। हाँ यहाँ मैंने कभी भी इतने में हमारे यहाँ इन चीज़ों का, हाँ शुक्रिया भाई, मेहरबानी। एक कुछ टाइम एसी की वजह से थोड़ा, जी सर, एसी की वजह से ठंड लग हाँ मैं हमारे यहाँ ऐसी का काम नहीं है। बैठो ना, और बैठो बैठो, और से लैपटॉप आया हूँ, टीम से मिलवाते हैं, सबसे मिलोगे, बैठो। அண்ட் அதுக்கப்புறம் மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ்களை போய் சந்திக்கும் போது அங்கேருந்து என்ன காட்சிகள் வந்தது அதை நீங்கள் பார்க்கணும். அதற்கு முன்னாடி இன்னொரு காட்சி நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு. ஐ வில் ஷோ யூ வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் லல்லன் டாப் ஆஃபீஸ். பட் பிஃபோர் தட் I want you to see another video. He is none other than Rahul Gandhi. ராகுல் காந்தி நேரடியாக முகமது இர்ஃபானுடைய வீட்டுக்கு சென்று அவரை சந்தித்திருக்கிறார். இப்போ ராகுல் காந்தி சந்திப்பதை நீங்க பார்க்கிறீர்கள். ராகுல் காந்தி அங்கே போய் சந்திக்க போன போது பிரியங்கா காந்தியிடம் ராகுல் காந்தி போன்ல பேச வச்சிருக்காங்க. அப்போ பிரியங்கா காந்தி said one thing to him. என் அண்ணா நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்க மாட்டேங்கிறேன், நீயாச்சும் கொஞ்சம் புரிய வைப்பா. என்ன மேடம், கல்யாணம் பண்ண சொன்ன. This is what Priyanka Gandhi told this person. And இந்த வீடியோவை நான் பார்க்கும்போது ஐ வில் ஷோ யூ த என்டையர் வீடியோ ஆஃப்டர் திஸ். ஒரு சமுதாயத்தின் சூப்பர் ஹீரோவாக இந்த நபர் வெளிவந்தார். அந்த ஸ்லம் ஏரியாவை நீங்க பார்த்தீர்கள், ட்ரக்ஸ், காஞ்சா, திருட்டு, பாக்கெட் மார், எந்த கிரைம் இங்க நடக்கலைன்னு நீங்க கேட்கணும். அந்த அளவில் கிரைம் இருக்கு. ஆனா இந்த நபர் 15 ஆண்டுகளா நடக்கக்கூடிய எல்லா போராட்டங்களையும் போய் பார்த்து சந்திச்சு, ஜேஎன்யூ, ஏபிவிபி, என்எஸ்யூஐ, அந்த மாணவர்கள், இந்த நபர் ஒரு வார்த்தையை பேசுறாரு. ஐயா, எனக்கு படிச்சவங்களை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும், நான் படிக்கல, அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன், அவங்கள்ட்ட நான் கத்துக்கிறேன். This is what he said. அந்த பின்னாடி அந்த கூட்டத்தை நீங்க பார்த்து எந்த அளவுல இவரை கொண்டாடுகிறார். आ जाओ सर, जय श्री कृष्णा सर, मैं इरफान सर, और आप सर, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर। दूर से ही ले रहे, बस दूर से ले। रजत सर, रजत है मेरे, उनको मैं लेके आता हूँ, आप चलो। सर रजत आओ, रजत आओ आप। अभी नहीं, सर प्लीज सर, सर मैं इनके बिना अधूरा हूँ सर। रजत आइए सर, रजत आइए, रजत है। माइक लेंगे, माइक लगा लिया भैया, माइक लगा दिया। हो गया साइड में सर, इधर हाथ खिला देना, मेरे फ्रेंड है। फ्रेंड का परिचय करो। आरिफ इधर आ, ये मेरा दोस्त है सर। ये आ जाओ नहीं, सबको नहीं, सबको नहीं। भैया आने दो बच्चों को, आराम से करो। मेरा पता नहीं, मेरा जहाँ से आया वहीं पे बगल में सर। 300 मीटर चल ये राहुल गांधी आए थे इरफान से मिलने के लिए, और उसके बाद अब 20-25 मिनट की मुलाकात के बाद
उस घर चल रहे हैं क्या इरफान? देखते हैं, आइए चलिए चलिए। उस घर चल रहे हैं इरफान? हाँ जी जी, हाँ परिवार को भी ले, हाँ जी ठीक है जी सर। இது ராகுல் காந்தியோட நடந்த விஷயம். Now I will take you back to Lallan Top's main office. Again, I am not going to talk a word. இதுக்கப்புறம் அங்கே நடந்ததை நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல நடந்த ஒரு சிறிய இன்சிடென்ட் நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டேன். பல பேர் இவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க. இன்னும் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் இவருக்கு நாங்கள் உதவணும் பல பேர் எங்களுக்கு மெசேஜ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் வி டெட் சம்திங் இன் ஆர் கெப்பாசிட்டி. இதே மாதிரி இர்ஃபானுக்கு ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கு. இராணுவத்தில் ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி. தம்பி, உங்களை பார்க்கும்போது அப்படியே பெருமையாக இருக்கு. உன்னுடைய தங்கச்சிக்கு திருமணம் நடக்கலைன்னு நீ கதர்னதை நான் கேட்டேன். எனக்கு மகள் இல்லை, அதனால் உன்னுடைய தங்கச்சியை என்னுடைய மகளாக நினைச்சு நான் 2 தங்க வளையல் கொடுக்க ஆசைப்படுறேன். அதற்கு இந்த பையன் கொடுத்த பதில், ஏழை குடிசையில வசிக்கக்கூடிய நபர் இன்னைக்கு ராகுல் காந்தியில இருந்து பிரியங்கா காந்தி வரை எல்லாரும் பேசுறாங்க இந்த நபரை பத்தி. அந்த பெண்ணிற்கு கொடுத்த பதில், அம்மா நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருச்சு, மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கிட்ட நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், எங்கள்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது, பாத்திரம் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருவோம், அதுக்கு மேல எங்கள்கிட்ட சக்தி இல்லை. இவ்வளவு நீங்க சொல்றீங்க, நாங்க எடுத்து வைக்கக்கூடிய இந்த பாத்திரத்துல நீங்க 2 பாத்திரம் வாங்கி கொடுத்துருங்க, நகையெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம், வாங்க எல்லாரும் இணைவோம், இந்த நாட்டை ஒரு அழகான நாட்டாக மாற்றுவோம். அழகான வார்த்தை. லல்லன் டாப்ல நடந்த அனைத்துமே இதற்கு மேல். चप्पल उतारू सर? नहीं आप लोग जाते हैं मेरे पास सब नहीं है। का देख लूंगा। आ जाओ, छोड़ो। चलो आप। मैं खोल देता हूँ। आप जाइए पहले, रुक जाओ। जा इरफान, घर से चलो। चलो चलो आप। ये है चप्पल उतारू सर? नहीं नहीं चप्पल नहीं भाई। सर ठंड लग रही है सर, यहाँ पे मुझे ठंड लग रही है सर, और आप लोगों ने मेरी, चलो मैं, मुझे इस संसार से और कुछ नहीं चाहिए भाई। कितना सुंदर बोलते हो यार। मैं तो, कुछ नहीं सर। मैं तो कमलेश जी हैं हमारे। बहुत बढ़िया, बैठिए। हम देख रहे हैं पहले दिन से। जी सर। क्या हाल। बस ठीक है, माता रानी की कृपा है सर जी। बहुत वही है। आ जाओ, या तो अंदर या बाहर हो जाओ जैसे भी। हैं? नहीं मैं तो मुझे यहाँ ठंड मैं देता हूँ। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे यहाँ ठंड लग रही है। हाँ यहाँ मैंने कभी भी इतने में हमारे यहाँ इन चीज़ों का, हाँ शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक कोई टाइम इसी की वजह से थोड़ा
जी सर। एसी की वजह से ठंड लग हाँ मैं रहा, हमारे यहाँ ऐसी का काम नहीं है। बैठो ना। और बैठो बैठो। और सर लैपटॉप आया हूँ। पूरी टीम से मिलवाते हैं। सबसे मिलोगे, बैठो। बड़ी खुशी हुई सर। और दोस्तों मैं मतलब आप लोग जानते हैं इरफान को। मेरे पास शब्द नहीं है बस। हम ना वैसा मैं खुदा की बारगाह में आपके इस प्यार के लिए कर्जदार रहूंगा। एक सलम से आने वाला व्यक्ति हूं मैंने आपकी तरह पढ़ाइयाँ नहीं करी, आपके जीवन से सीखा है मैंने। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं अच्छा बोल रहा या बोल रहा हूँ, बस मैं बोलता हूँ और मैं आप सब से सीखता हूँ। मैं हकीकत में मैं आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मैं ऐसा हूँ नहीं किसी भी तरीके से। दुनिया की नज़र में मैं वायरल हूँ, मैं आज भी ज़मीन पे खड़ा हूँ और आप सब मेरे रोल मॉडल हैं, हीरो हैं। जब पत्रकार या कोई छात्र मुझसे मिलता है, मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपनी एक कामयाबी मांगता हूँ कि कोई छात्र मुझसे मिलता है या पत्रकार मिलता है, तो जानता हूँ कि जब इनसे मिला तो मैं इनसे कैसे चिपट रहा था। तो आज सब आप लोगों ने मेरे को ताली बजाई। आप मेरे अपने साथ हैं, मैं सलम से आता हूँ सर। और मैं आज राहुल गांधी से मिला तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर सर आप जो हम आपसे अपनी मांगे रख रहे हैं, आप विपक्ष के बड़े नेता हैं और आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे, अगर आपने हमारी बातों के वादा खिलाफी कही तो हम अपनी असहमति आपके खिलाफ भी रखेंगे, रजत कहा ना, और हम सड़कों पे आएंगे सर। तो हम न्यूट्रल हैं, हम इस देश का भला चाहते हैं और आप सब मिलके ना बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेरी कॉलोनी में गए, नशा बंद हो गया, आप घर घर जाएंगे, अलग अलग बस्तियों में जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आप सबसे कि आप सब देश के लिए बेहतर करेंगे। हम आपसे क्या चाहते हैं कि शासन जो लापरवाह है लेकिन वो आपके सामने खड़ा नहीं होता। अगर आप किसी करप्ट अफसर से बात करेंगे ना, वो आपसे डरता है, लेकिन एक आम आदमी का टैटुआ पकड़ लेता है, मालूम है, वो आपसे डरता है। आपको नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है कि वो आपसे बहुत डरता है, क्योंकि वो करप्ट है और वो आपसे निडरता से दो शब्द नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो करप्ट है। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जिस भारत से मैं आता हूँ वहाँ बहुत दर्द है। मैं बनावटी बातें नहीं करता। आप कल्पना कीजिए कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए स्मैक लानी पड़े। वो चोरी करके आया, पिटा है और उसके शरीर में बहुत तकलीफ है और वो कह रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेरे को 400 रुपये की ये गांठ ला दे। वो सब देखा है सर। और मैं कैम्प में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ वो नहीं है, मैं जो बोलता हूँ। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि शहरी स्लम और ग्रामीण भारत में जो यातनाएं हैं उसको आप जब सरकार के समक्ष ला के खड़े करेंगे तो इस भारत को बदलने में बहुत कामयाबी मिलेगी सर। ये लड़ाई लंबी है, मुझे मालूम है, इतना आसान नहीं है सब कुछ, लेकिन ऐसे ही नहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया आपको। आप नकेल कसेंगे इन तीनों संस्थाओं पे, कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका, सब पे नजर रखने के लिए आपको रखा गया है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत हो सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कविता फिर से सुना देंगे जो नीरज की कविता आपने। हाँ, नीरज की कविता कहती है क्योंकि समय हमारे पास अच्छे थे, कुछ बड़े थे, कुछ लम्हा पकड़ने के भी थे, कुछ लोग हमारे साथ थे, कुछ नहीं थे, और लास्ट में मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई। वो कहते हैं सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से, हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली ना थी कि है धूप ढल गई, पाँव भी उठे ना थे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। और मुझे आपसे लालच है, मैं आपसे बहुत कुछ लेने आया हूं। मैं कहूं कि मैं आंख बंद करके विश मांगूंगा आप सेंटा क्लॉज से, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग गरीबों की आवाज बने, सब गरीबों की आवाज बने, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों इरफान गलियों में हैं, मैं नहीं हूं, करोड़ों इरफान गलियों में हैं।
आप उन्हें मंच देंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे कोई भी शब्द मेरे लिए नहीं है, इस देश की बड़ी आबादी के लिए है। जो बात मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं सभी के सामने इस तरीके से करता हूँ। राहुल जी के सामने भी इस तरीके से करी, क्योंकि मेरे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं एक नेचुरल आदमी हूँ, अपनी तरीके से अपनी बातों को रखता हूँ। उनको लग रहा था कि अलग, मतलब जैसे और चीज़ें होती है वैसा नहीं है। मेरे अपने दर्द हैं, मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ दर्द है, तो मैं बताऊँगा सर आपसे, आपकी जिम्मेदारी है। 18,000 इसके लिए तो 6,000 क्यों मिल रही है? मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीरे हैं और मेरे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा दिलाना है। हम मजदूर हैं तो हम कहेंगे ना, हमारी मेहनत का हक दे दीजिए। आप हमें लाभ भारती कहते हैं, आप हमारी मेहनत का हक दे दीजिएगा तो हम बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में। आप शिक्षा के निजीकरण को देखिए, इससे गरीब मर रहा है। बड़े स्तर पे देश में जब स्कूल बंद होने की खबरें आती है तो हम जैसे गरीब को पीड़ा होती है। बार बार गरीब कहने की वजह यह है कि उस श्रेणी से आते हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सलम में रहते हैं, जमाने की धुतकार में रहते हैं। जलालत से कुछ भी नहीं होता, अपमान कुछ भी नहीं हमारे लिए, अपमान दीदी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। दुनिया का नज़रिया बहुत अलग है, बहुत अलग है दुनिया। तो हम सब आज लल्लन टॉप के सभी पत्रकार खड़े हो गए और मैं बेहिचक बोलता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं समझदार हूँ, बस मैं ये है कि मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ जो भी है। और सभी लोगों से एक वाकया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं रजत भैया को भी बताया। विंग कमांडर अनुपना जोशी हैं, उन्होंने कल मुझसे बात करी तो मैंने सभी लोगों को कहा कि मुझे आर्थिक मदद नहीं चाहिए किसी भी तरह की। आइए साथ आते हैं, भारत को बदलते हैं। इसका कारण बता दो उन लोगों को। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो एक कारण ये भी है कि मुझे बड़ा डर लगता है कि भैया विदेशी फंडिंग का आरोप लग जाएगा कारण ये भी है भाई साहब है कि वो खबरें सुनते हैं कि भाई खालिस्तान से फंडिंग हो रही है, तो वहाँ से फंडिंग हो रही है, और मेरा अकाउंट भी नहीं है, तो ठीक है फंडिंग से बच रहा हूँ तो उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि बहन मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें रोका, तो फिर उन्होंने कहा कि इरफान मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं आपकी बहन को 2 सोनों के कंगन देना चाहती हूँ। ये जब बात सुनी तो मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने कहा मेरी बहन का जहाँ शादी की बात चल रही है ना सर, आप सबको बता रहा हूँ, वहाँ हमने लड़की वालों को पहले कह दिया सर हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हम घर के बर्तन सामान दे देंगे। तो मैंने मैम को कहा, दीदी को कहा कि हमारी तो पहले बात हो गई है कि सोना वोना नहीं देना, तो आप सोना देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगी बात, आप 2 बर्तन दे देना तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं सोना वोना नहीं देना, बर्तन दे देना, क्योंकि नहीं चाहिए सोना होना, आपका प्यार चाहिए, आप साथ खड़े मेरे वो चाहिए। आप इतने बड़े मकाम पे हैं, आपने भारतीय सेना को सेवा दी है और आप मुझ जैसे व्यक्ति से बात कर रही है जो सलम में रहता है, तो ये मेरे लिए एक दौलत है, एक पूंजी है। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ? सबसे आपसे, आप सब मेरे प्यार में खड़े हो गए, तो इससे ज़्यादा मैं क्या चाहूँगा? कुछ चाहूँगा। और मैं एक शायरी मेरी बहुत चल रही है, मैं अहमद फराज जी की सुना दूँ क्या? तुमने राहुल गांधी को राहुल जी को सुनाई कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए। ए एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ धर्म, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है मुझे मार दीजिए। और जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साफ साफ कह रहा हूँ मुझे मार दीजिए। तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए। मतलब मैंने रजत से कहा था कि हमारी टीम की बड़ी मिलने की इच्छा है, और एक एक करके सबको आपके यहाँ लेकर के तो नहीं आ सकते, बहुत ज्यादा लोग हैं। नहीं। मैंने कहा अगर इरफान को ही यहाँ ले आओ तो सब लोग एक साथ मिल लेंगे। तो बहुत अच्छा रहा, और हमने आपके सभी वीडियोस देखे, उन पे बहुत चर्चा की, और जैसे दुनिया अमेज हुई है उससे पहले हम लोगों तक वो वीडियोस पहुंचे, तो हम भी इस बात में हैरत
में पड़ गए कि ये व्यक्ति इतना अच्छा बोल कैसे लेता है। पत्रकारों का एक सपना होता है क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं ना लोगों से, जनता से बात करते हुए, तो वो सब अच्छा बोलने की इच्छा रखते हैं और लगातार उसी स्किल को पाने की कोशिश करते हैं कि यार हम अच्छा बोलने लगे ताकि हमारी कही हुई बात में वजन आए। आपने वो बिना पारंपरिक तालीम के, बिना स्कूल में गए हुए वो स्किल हासिल की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गॉड गिफ्ट है, आपने हासिल किया है क्योंकि यूट्यूब हाँ, नहीं, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की नहीं आपने। सर, मैंने इन चीज़ों से भी किया है। फिर मैं लगातार धरना प्रदर्शनों में रहा है, तो मुझे ना हमेशा छात्रों का जो इंकलाब होता है ना, सबसे पहले मैं अन्न आंदोलन में एबीपी के, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र थे वो। मैं जब घर आता था ना, मैं कहा वहाँ पढ़े लिखे बच्चों, कॉलेज वालों के साथ नारे लगाए। उस टाइम 19-20 साल का था। तो मुझे हमेशा से पढ़े लिखों से प्यार रहा है। मैं वैसे का स्कूल नहीं गया, आप जैसे लोगों से बहुत प्यार रहा है। मैं पत्रकारों को देख के ना सर मैं बहुत खुश होता हूँ, छात्रों के साथ। तो इसी तरह मैंने प्रदर्शन में रहा हूँ, तो मैंने आईसा से, एसएफआई से, एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं से, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से, तमाम अलग अलग छात्र संगठनों से, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, वकीलों से और सोशल एक्टिविस्टों के साथ मैंने रहा, किसानों में आंदोलन में रहा। तो इन सब चीज़ों से उन बातों का को समझ आया है। हाँ, थोड़ा असर तो उसका पड़ ही जाता है। हाँ, हर चीज। पर एक बार फिर से इनका स्वागत यहाँ आने के लिए। थैंक यू। और मैं पिछले 15 सालों से धरना दे रहा था। मैं पिछले 15 सालों से अलग अलग समय पे धरने में था और मैंने शादी भी नहीं करी थी। मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। मैंने छोटे भाई की शादी करा दी थी और मैं आगे भी अविवाहित रहने का फैसला, ये मुझे इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये सख्त गुनाह है इस्लाम के नज़रिए से, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मैं भारत में जन्मा हूँ, यहाँ त्याग और करुणा और प्रेम दया भी है, तो मैंने उधर भी झुकाव दिया। तो मैंने अपने जीवन को उस तरफ भी मतलब अकेले रहने का फैसला किया है। इसीलिए किसी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता और सब कुछ ठीक ठाक है और अपने लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप बस उन लोगों के लिए, मैं वहाँ से आता हूँ तो वो सारी बातें करता हूँ और मुझे बहुत जिज्ञासा है दुनिया को समझने के लिए। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, दिन भर बैठ के बातें कर मैंने देखा वो राहुल जी जैसे ही आए, उनका हाथ पकड़ के आपने कहा आइए सर मुझे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ। नहीं तो राहुल गांधी 2 ही 3 बार बोल पाए। हाँ, राहुल गांधी 2 ही 3 बार नहीं बोले, राहुल गांधी 2 बार बोल पाए। उन्होंने मुझसे बोला नहीं क्योंकि राहुल गांधी सुनते रहे और राहुल गांधी से मैंने क्लियर ही कहा सर, एक सीधा संदेश था कि 2024 का एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 1,70,746 मौतें हुई, जिसमें 31% दिहाड़ी मजदूर थे और वजह एक थी कि घर में तंगी और मानसिक संतुलन डिस्टर्ब होना, आर्थिक तंगी थी। तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं उस वक्त को, जो इस देश की बड़ी आबादी है और खून पसीना लगा रही है इस देश के निर्माण में, हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हर दिन 467, हर मिनट 3 लोगों ने जान दी है, उनमें सबसे बड़ा नंबर मजदूरों का था। राहुल जी से मैंने ये कहा है कि हम एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ लोग बेसिक चीज़ों से वंचित ना रह जाएं। शिक्षा ही जीवन को बेहतर बनाएगी, परिवार को, समाज को और देश को। हम उनसे वंचित हो जाएं तो फिर हम कैसे इंसान हैं। आप एक आंकड़ा उठा के देखिए शिक्षा मंत्रालय से कि 10वीं और 12वीं से पहले स्कूल मतलब छोड़ने वालों की संख्या कितनी है, ड्रॉप आउट की संख्या कितनी है। वो गंभीर सवाल है भारत में। आप 10वीं 12वीं का बच्चा स्कूल छोड़ दे रहा है। आपने तो पॉलिटेक्निकली ITI भी लगाई है कि आप बच्चा टेक्निकल कर ले, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाए, इसी सेक्टर में आ जाए, अलग अलग फील्ड में चले जाए, लेकिन वो बच्चा वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा। बच्चा टेक्निकल भी नहीं जा पा रहा, ITI भी नहीं कर पा रहा, IIT तो क्या करेगा। इसीलिए जो IIT या नीट या JEE जैसे बड़े हायर एजुकेशन में बड़े मिडिल क्लास है उससे बड़े बच्चे पहुंच पाते हैं, गरीब का बच्चा वहाँ जगह नहीं बना पा रहा। ये अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ा रहा है। तो एजुकेशन में बराबरी होनी चाहिए कि गरीब के बच्चे को भी सपने देखने और उसको पूरा करने का मौका मिले। ये पेपर लीक उसी चीज़ का नतीजा है। आप प्राइवेट सेक्टर में अगर MBBS करने जाएंगे तो करोड़ों चाहिए, अगर नीट में नंबर आ जाए तो 5-10 लाख रुपए में भी हो जाएगा। यही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत कह रहा हूँ क्या मैं, है ना, कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा और प्राइवेट में करा पाएगा, करोड़ों रुपए होंगे हमारे पास।
तो इसी चीज़ें के लिए तो जंतर मंतर पे बैठे थे कि व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। चलिए उसका पहला स्टेप जो कम से कम प्रदर्शनकारियों की मांग थी वो तो पूरी हुई। खाना नहीं खाया, चलिए भोजन करते हैं। हाँ? आज राहुल गांधी जब आए तो इनको ये बकायदा इनकी फोन पे प्रियंका गांधी से बात हाँ करी। बताया वो तो नहीं, प्रियंका गांधी ने इनसे रिक्वेस्ट करी है, वो बता दो ना क्या रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप भाई से कहिए कि शादी कर लें। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप राहुल गांधी से कहें कि वो शादी करें। वो शादी कर लें, मेरी बात नहीं मान रहे। और मैं चाहूंगा कि राहुल जी शादी ना करें। तुम्हारी तरह रहे हैं। हमारी तरह ही रहे, मेरे से बड़े हैं वो। तो बहुत नेक दिल इंसान है। किसी को दूर से पता है, एक दौर आया ना कि लोग कहने लगे, अरे मैंने कहा ना मेरी स्टार्टिंग की मैं छात्र और पत्रकारों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, JNU ये JNU कहने लगे थे ना, एक दौर आया था। मैं उन लोगों से जब बात करता था, मैंने कहा अपने बच्चे का एडमिशन करा दें वहाँ, तो मैं मान जाऊँगा कि JNU बेकार है। काबिल और पढ़े लिखे सक्षम लोगों के लिए JNU है, ये नहीं कि मुंह उठाए JNU चले गए। भारत का एक नामचीन संस्थान है हायर एजुकेशन में, आपको एक काबिल इंसान बनाता है दुनिया के सामने। JNU से निकले हुए लोग विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, और विदेश मंत्री वित्त मंत्री हैं, और उन्हीं के समर्थक उस पर उंगलियां उठाते हैं। हाँ, वो अलग है कि विचारों का मतभेद है, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन हमने आयशी घोष को देखा है आयशा से हाथ तुड़वा के लड़ते हुए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, आपसे मिलते हैं। आइए भोजन करते हैं। नहीं, शुक्रिया आपको, क्या बात करते हैं। Muhammad Irfan, definitely an inspiration for all of us. பேச்சு திறமை, நாலேஜ், இந்த நாட்டை பற்றி அவர் கவலைப்படுவது, இந்த நாட்டின் மாணவர்களை பற்றி, இந்த நாட்டின் தொழிலாளர்களை பற்றி, இந்த நாட்டு கான்ஸ்டியூஷனை மனப்பாடமாக தன்னுடைய மனதில் ஏற்றிய இந்த இளைஞர்களுக்கு என்னுடைய செல்வி. எங்களுடைய என்டையர் டீம் இவருடைய வீடியோவை பார்க்கும்போது அவர்கள் கூறக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா, எடிட் டீம்ல இந்த வீடியோ போகும்போது அப்படியே ஒரு உணர்வுடன் அவர்கள் அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது ஐ கேன் ஃபீல் ஹவ் வி ஆல் ஆர் கனெக்டிங் ஆர் செல்ஃப் வித் இர்ஃபான். இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். முகமது இர்ஃபானை பற்றி இன்னும் ஒரு சில வீடியோக்கள் எங்களுடைய சேனல்லே இருக்கு, போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோவை பகிருங்கள், உங்களுடைய கேள்விகளை கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்கள். இதை தாண்டி இந்த வீடியோவில் முகமது இர்ஃபானிற்காக உங்களுடைய மெசேஜ், எந்த நாட்டில இருந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து நீங்க பார்க்கிறீர்கள், அதுவும் கீழே எழுதிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு புரிய வரும், எங்கெல்லாம் எங்களுடைய வீடியோ ரீச் ஆகிறது என்று. நன்றி, வணக்கம். ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும், இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள். ஓ, அப்ப அந்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பெர்ஃபெக்ட் உண்மையிலேயே வர்த்து. நரம்பு தளர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு உடம்பு ஒரு புது வீரியம் பெற மா நேச்சுரல்ஸோட மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்க.